बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक लेसन को दैट इज़ अबाउट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। सो इसको देखना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स टू मेक डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या उसके रूल्स हैं, उनको भी देखेंगे। सो हियर वी गो। Before discussing about direct and indirect speech, it's better to know that we may able to differentiate different kind of sentences. आपको पता हो कि किस तरह different kind of sentences हैं। So ये help करेंगे आपको किस sentence को किस लिहाज से direct से indirect के अंदर convert करना है या उसकी speech को किस तरह change करना है। So these different kind of sentences, they may take different rules of writing indirect speeches. So उनको देखते हैं। So first form, assertive sentences that may be also called declarative sentences. The second, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, and your optative sentences. So इनको आप देखते हैं वन बाय वन और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पे वापस आएंगे. So your first form of sentences is declarative sentences, which is also called assertive sentences. In these kind of sentences, you may use some kind of ideas that about declaration, that may be a statement, that may be assertion, that may be a claim. इसमें कोई भी चीज़, किसी तरह की बात, जो कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात कही जाती है, उसको आप बयान करते हैं. So declarative sentences are also called, जिसको आप उर्दू में बयानिया फ़िक्रे कहते हैं. These are basically assertive sentences. So there are two different kind of assertive sentences. One kind is a positive sentence, जिसमें सादा जुमला positive way में लिखा जाता है. Second form of assertive sentence that is negative sentences, जिसमें negative sentence लिखा जाता है. So here are few examples. The first positive sentence: the dog went to the county fair. This is assertive sentence. This is a positive sentence. ये सादा जुमला है, positive लिखा गया है. The second, dogs don't usually eat popcorn. That is negative sentence because don't or do not is used here. So negative को मनफी फिक्रे जो हैं वो भी declarative और assertive sentences का part होते हैं. So इस तरह के sentence जिसमें कोई information convey की जाती है या किसी की इंफॉर्मेशन की नफ़ी की जाती है या किसी स्टेटमेंट की मनफी की जाती है, किसी असर्शन की, किसी ऐलान की या किसी तरह की चीज़ की, सो उसको आप अमूमी तौर पे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटेग्रेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इज बेसिकली दो सेंटेंसेस विच पोज क्वेश्चन, जो कुछ सवाल पैदा करते हैं किसी चीज़ का के ऊपर आपसे पूछा जाता है, दैट हैव अ पॉसिबल आंसर, जिसका कोई ना कोई जवाब होता है. सो उसको आप अमूमी तौर पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. दीज सेंटेंसेस कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. दो काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट फॉर्म in which we use auxiliary verbs and helping verbs of their own, जिसमें कुछ अपने ही auxiliary verbs जो sentence के अंदर होते हैं वो लिखे जाते हैं. And sometimes we use different kind in which there are WH words along with your auxiliary verbs, यानी कि जिसमें WH वाले words होते हैं और उनके साथ किसी auxiliary verb को लगा के बनाया जाता है. So ये दूसरी kind है. First kind की example you can see. Have you ever been to country fair? This is your have is basically auxiliary verb and helping verb that is used to make integrative sentence. So ये आपकी first form है, first kind है. Second, in which WH words are used. What is your favorite sauce to put on grubs? ये आपका what. Why is the dog going to the country fair? ये भी आपका double interrogative. So these are sometimes called double interrogative sentences. तो double interrogative भी कहते हैं और उसके साथ साथ ये WH वाले words भी उनको भी कहा जाता है. तो ये दूसरी फॉर्म है आपके sentences की. और इनको भी बनाने का डिफरेंट फॉर्म. इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो auxiliary verbs they will take different role and double interrogative sentences may be used with different kind of rules.
सो इसलिए आपको पहले इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर इनकी कन्वर्जन को भी हम देखेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ योर सेंटेंसेस इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव को उर्दू में सादा से अल्फाज में हुक्मिया फ़िक्रात कहा जाता है। दैट मे कन्वे सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट मे बी अबाउट रिक्वेस्ट, दैट मे डिमांड समथिंग, दैट इज बेसिकली योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको आप अमूमी तौर पे हुक्मिया फ़िक्रे भी कहते हैं, और इसकी ये कैटेगरी, इसकी ये फॉर्म होती है जिसमें अमूमी तौर पे यू इज़ योर सब्जेक्ट एंड दैट इज़ नेवर रिटन, दैट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड। जो अंडरस्टूड होता है लिखा नहीं जाता। सो दिस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ सेंटेंस दैट मे स्टार्ट फ्रॉम योर वर्ब। ये वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, हैव फन एट द फेयर, कम टू द फेयर विद मी, मेरे साथ मेले पर आओ। और ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ विशिंग्स हैं, कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ कमांड्स हैं, तो ये उनकी डिफरेंट फॉर्म है। सो इसको भी देखते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी दो फॉर्म आती हैं। द सिंपल वन दैट इज बेसिकली असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, जिसमें सादा फिकला लिखा जाता है, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है, मनफी जुमला आ जाता है, in which you used do not or don't feed the dog. That is imperative sentence. Here you can see or feel the difference between imperative sentence and declarative sentence. Don't feed the dog is basically some kind of command. ये हुक्म है जो दिया गया है, एंड ही डिडंट फीड द डॉग, ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, एक इंफॉर्मेशन है जो पहुंचाई गई है। इस लिहाज से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल जो है वो असर्टिव सेंटेंसेस से डिफरेंट है। सो फोर्थ कैटेगरी ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मोस्टली ये जो किसी सडन फीलिंग, किसी पैशन, किसी इमोशन, किसी सडन एक्साइटमेंट, उनके लिए ये लिखे जाते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एज वेल। इसमें एक वो सेंटेंसेस हैं, दे ऑलवेज टेक देयर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जो जुमले के इख्तिताम पे इनको लिखा जाता है, और मोस्टली दे आर अबाउट वंडर, हैरानगी को शो करवाने के लिए आते हैं। द अदर फॉर्म विच यूज इंटरजेक्टरी वर्ड्स, दूसरे में इंटरजेक्शन वाले वर्ड यूज होते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रेवो, अलास। दीज आर बेसिकली योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी योर इंटरजेक्टिव वर्ड्स इनके साथ यूज होते हैं। सो इनके जो इंटरजेक्टरी वर्ड्स हैं, ये अपने साथ फौरन एक्सक्लेमेशन साइन को लेते हैं और दूसरे सेंटेंसेस पे एंड पे चला जाता है। तो ये सडन फीलिंग, सडन इमोशंस को शो करवाते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, आई कांट बिलीव हाउ फास्ट दैट डॉग एट ऑल द पॉपकॉर्न, ये वंडर को शो करवा रहा है, इस लिहाज से एंड पे चला गया। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, हे इसके बाद आ गया, दैट इज बेसिकली हे इज यूज्ड हियर फॉर इंटरजेक्शन। देयर इज नो मोर पॉपकॉर्न, यहाँ कोई और मजीद पॉपकॉर्न नहीं है, और बाकी सडन फीलिंग के साथ आया है, इसलिए इनको आप एक्सक्लेमेशन या आर these are called exclamatory sentences. So your fifth kind of sentence is optative sentences. Optative sentences, according to some grammarian, it is same kind of exclamatory sentences. ये उसी फॉर्म को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मोस्टली अपने साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। उर्दू में इनको आप दुआया फ़िक्रे कहते हैं, जो अमूमी तौर पे किसी प्रे, किसी विश के लिए यूज़ होते हैं। सो दीज आर योर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन विच देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। इसकी भी दो अकसाम हैं। द फर्स्ट वन that we use may with it, जिस तरह देखें, may the sun shine well, may you live long। इस तरह के sentences को when you try to convert in indirect speech they may use different form, so different way से इनको use किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो form of operative sentences हैं, वो अमूमी तौर पे फॉर्म के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म को शो करवा रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर वो रूल नहीं आता। God bless you with baby boy, good luck, these are the second category of your optative sentences। so इनको यूज करने का डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट पैटर्न है। so ये आपके बेसिक जो डिफरेंट फॉर्म्स थी, डिफरेंट कैटेगरीज थी सेंटेंसेस की,
जिनका जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी था। द नेक्स्ट हेयर इज़ बेसिकली एन एक्सरसाइज और एन एक्टिविटी फॉर यू। ये एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज डिफरेंट सेंटेंसेस। इनको आपने आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट देम डाउन, और इनको लिखना है आपने कहाँ, इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखना होगा, पहले लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 और इनके साथ उसी काइंड लिखेंगे। नंबर 1 लिख के कि ये असर्टिव है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये कौन सा है वो डिफाइन करना है। सो ये 15 आपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसको मेंशन करना है। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा और ये आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी किस तरीके से करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। सो डियर लिसनर्स, अब हम आ चुके हैं द मेन सेक्शन ऑफ आवर लेसन, दैट इज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। सो किसी भी बात को करने का या कहने का या लिखने का दो अंदाज होते हैं। इफ़ यू ट्राई टू से इन डायरेक्ट वर्ड्स, सेम जैसे बात की जाती है उस, और दूसरा वे होता है आप इनडायरेक्ट वे से कहें। हियर आर द एग्जांपल इज गिवन, द डायरेक्ट नरेशन इज शी सेड टू मी, the comma and inverted commas begins, I received this telegram from your father yesterday, full stop or periods जिसको आप पीरियड भी कहते हैं, and inverted commas close। so ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है जिसमें आप इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। एंड द सेकंड फॉर्म इज इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता लेकिन बात को थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। एंड मोस्टली दिस चेंजेस आर टू काइंड्स, जिसमें आपके प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज होते हैं एंड मोस्टली आपके सेंटेंसेस चेंज होते हैं एंड समटाइम्स सम स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो भी चेंज होते हैं। सो जस्ट फील द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। शी सेड टू मी that she had received the telegram from your father, from my father, the previous day. So here this sentence is basically different from the first one. तो फर्स्ट डायरेक्ट है, तो सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत वाजे है। उसमें इन्वर्टेड कामास थे, इसमें नहीं है, उसकी जगह पे दैट आ गया। उसमें सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में था, इसमें पास्ट परफेक्ट में चला गया। उसमें प्रोनाउंस की चेंजेस आई हैं यहाँ, और सम काइंड वर्ड फॉर एग्जांपल यस्टरडे इज कन्वर्टेड इनटू द प्रीवियस डे, तो ये कुछ चेंजेस जो हैं दोनों में आती हैं। सो इस लिहाज से किसी भी चीज़ को, पार्ट ऑफ स्पीच को, सॉरी ये डायरेक्ट स्पीचेस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसको डिफरेंट रूल्स को अपने देखना होता है। सो रूल्स को देखने से पहले वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट जो सेंटेंस के हैं वो क्या होते हैं। सो दो पार्ट अमूमी तौर पे होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कामास और कोटेशन मार्क्स। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाती है उसको आप अमूमी तौर पे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो बात कही जाती है। I received this telegram from your father yesterday. This is reported speech, and he said to me this is reporting speech. तो ये रिपोर्टिंग है। इसको सादा से अल्फाज में समझ लें, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट कर रही होती है, बात को बयान कर रही होती है, और रिपोर्टेड बात वो जो बात की जाती है, जो कही जाती है। सो ये डिफरेंस है। इनको जो इन्वर्टेड कामास में आ जाएंगे वो रिपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा ये भी देख लें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, दिस बुक or this form of or part of book which I have selected for you, this is basically written in English and Urdu as well, दोनों में है। सो आपको comprehend करने के लिए भी easy होगा, समझने के लिए भी easy होगा। जो बच्चे उन चीज़ों को इंग्लिश से प्रॉपर नहीं समझ सकेंगे वो इनको यहाँ से देख सकते हैं। सो अब हम देखने जा रहे हैं सम बेसिक रूल्स जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं सो क्या क्या आते हैं। So first change is that is basically about your personal pronouns. Personal pronouns, there are three
basic persons in English: first person, second person and third person. First person I and we which is called, जिसको आप मुतकल्लम कहते हैं, जो कलाम कर रहे होते हैं उनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है. आई एंड वी एंड डिफरेंट कैटेगरीज आर आई एंड वी, जो उसमें उसकी फॉर्म्स हैं वो भी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा उसके जो टेबल्स हैं. उसके अलावा सेकंड पर्सन ये दो होते हैं, एक यू सेकंड पर्सन है जो हाजिर होता है, एंड दी इज बेसिकली यूज्ड इन ओल्ड लैंग्वेज में यूज होता था, अब यूज नहीं होता. सो सेकंड पर्सन दी है. थर्ड पर्सन ही शी इट, दीज आर सिंगुलर थर्ड पर्सन, एंड दे इज प्लूरल थर्ड पर्सन. तो ये थर्ड पर्सन है. द फोर्थ इज बेसिकली योर न्यूट्रल पर्सन जिसको आप कहते हैं. सो बेसिकली तीन पर्सन है लेकिन फोर्थ न्यूट्रल है. न्यूट्रल पर्सन में वन जो है वो यूज होता है. सो ये डिफरेंट इन पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस को भी चेंज किया जाता है. देयर ऑलवेज चेंजेस ऑफ योर टेंसेस की भी तब्दीलियां आती हैं, वो भी देखेंगे, और कुछ वर्ड्स की भी आती हैं. लेकिन ये सारी तब्दीलियां कहाँ कहाँ आती हैं, कहाँ रिपोर्टिंग स्पीच किस तरह की हो तो उसके मुताबिक आती हैं, ये हम नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसमें ये आपके पास टेबल बना हुआ है. इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो डिस्क्राइब किए हैं. सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और उसमें पोजेसिव केस में ये कैटेगरीज हैं. फर्स्ट आई इज योर सब्जेक्टिव केस, माई इज बेसिकली योर possessive adjective, and mine is possessive pronoun, and me is your objective case. So ये कैटेगरीज हैं. सो आप इनको देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चेंज करना है. चेंजेस के हवाले से भी मैं आपको यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताता जाऊँगा. सो यू हैव टू रिमेंबर वन रूल दैट इज़ बेसिकली SON, या जिसको आप उर्फ़ आम में सन कह लें, और ओब्लीग 1, 2 एंड 3. सो इस रूल को अब याद रखिएगा कि SON 1, 2 एंड 3 इट्स मीन कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी जब भी तब्दील होना है ये सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन जब भी तब्दील करना है आपने ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, वो तब्दील नहीं होता. सो ये रूल आपने माइंड में रखना है. इसको माइंड में रखेंगे तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे. सो अब तब्दील किस लिहाज से होना है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन जो कि रिपोर्टेड स्पीच का होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक होगा. ठीक है. सो मैं एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. और अगर इसी तरीके से जो आपका सेकंड पर्सन है जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और थर्ड पर्सन जहां भी आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होता. सो ये माइंड में रखिएगा. अब ज़रा इनकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए. और एक और चीज़ भी माइंड में रखें, whenever your reporting speech is in present tense or in future sentences, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में जस्ट प्रोनाउंस की चेंजेस आती हैं. इट्स ऑलवेज चेंजेस जस्ट प्रोनाउंस. प्रोनाउंस तब्दील होते हैं उनके अंदर, बाकी जो टेंसेस की चेंजेस नहीं आती. मैं एक तो एग्जांपल्स दूंगा, बाद में आप इनको कंप्लीटली देख लीजिएगा. फॉर एग्जांपल, ही सेज आई एम इल. दिस इज डायरेक्ट स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड इन्वर्टेड कॉमास स्टॉप, तो खत्म हुए. अब इसको जब कन्वर्ट किया, ही सेज दैट, दैट जब आ गया इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए. आई इज बेसिकली योर फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. तो फर्स्ट जो है आई ने तब्दील होना था किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, ही के मुताबिक, तो उसकी जगह पे उसकी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा. यानी कि आई का
सब्जेक्टिव केस आपने देखना है ही में, यानी कि उसके मुताबिक, तो वो इसका सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा। सो ही सेज दैट, आई की बजाय फिर क्या आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज आना था, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, सो ही आ गया। तो ही के साथ इज आता है, एम नहीं आता, इसलिए एम की बजाय इज आ जाएगा, इल। ठीक है, सो ही सेज दैट ही इज इल, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। सो नो आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ 7 नंबर। तो एक और एग्जांपल ताकि आपको आइडिया हो जाए। ही सेज टू अस, इसमें ये ही जो है आपका सब्जेक्ट है, सेज बेसिकली योर वर्ब, एंड अस इज योर ऑब्जेक्ट। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, सॉरी। सो आई इसमें फिर क्या आ गया, अब ये रिपोर्टेड स्पीच का आई वो तब्दील होगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वो चेंजेस होगा विद योर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और सब्जेक्ट वही फिर ही है, सो ही उसकी जगह पे आ जाएगा। सो ही सेज टू अस दैट ही रिस्पेक्ट अस, रिस्पेक्ट्स अस इसलिए आया क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, तो ही शी इट, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ऑलवेज टेक एस आर ई एस इन इंडेफिनिट सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल आपको एक और दे देता हूँ, वो किसकी एग्जांपल होगी, यू की, ताकि आपको आइडिया हो। द एक्सरसाइज नंबर, एग्जांपल नंबर 10, वी से टू हर, इसमें वी योर सब्जेक्ट and her is your object and you basically your second person। you क्या है आपका, ये second person है। ठीक है, so your uncle will not hate them। ठीक है, and them is basically third person। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। सो आपने क्या करना है, वी से टू हर, अब जब कन्वर्ट होगा वी से टू हर विल रिमेन द सेम, एंड कॉमास जो हैं वो आपके हटेंगे, तो डैट आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा, योर बेसिकली योर सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन चेंजेस विद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें है प्रीवियस सेंटेंस में हर, तो इसके मुताबिक चेंज होगा। और हर जो है वो फॉर्म यही लेगा, इसकी भी जो देम यानी कि योर की जो फॉर्म है, ये अगर आप देखते हैं, यानी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो वो भी पोजेसिव एडजेक्टिव उसी का लेगा, हर का लेगा। सो क्या हो गया, वी से टू हर दैट हर अंकल विल, अब टेंस चेंज नहीं हुआ इसलिए क्योंकि प्रीवियस रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए से चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एंड विल हेट देम, देम बेसिकली थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, वो तब्दील नहीं होता। सो ये आपका आपका ये समझ लें कि एक तरह से एक फॉर्म्स आपने जो पढ़े देख लिए, इस तरीके से प्रोनाउंस को आपने चेंज करना है। सो उसके बाद ये एग्जांपल्स दी गई है, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव ट्राई टू राइट डाउन दी सेंटेंसेस, आपने इनको लिखना है और ट्राई टू मेक डिफरेंट फॉर्म्स, इनको किस तरीके से चेंज करना है, इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनानी है, वो आपने देखनी है। फर्स्ट लेसन था यहीं तक रखूंगा, इसके बाद चेंजेस आएंगी और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि टेंसेस की क्या चेंजेस आती हैं, वर्ड्स की क्या आती हैं, फिर असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह से लिखे जाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेग्रेटिव सेंटेंसेस एंड सो ऑन, बाकी सेंटेंसेस को किस तरह लिखा जाएगा ये भी देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ यही रखें, अपने इन एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है और फिर उसको भी हम देखेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम आई यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।